हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोटा। आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हमने सीखा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय जे थॉमसन। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, और दिस मॉडल इज नोन एज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और पुडिंग मॉडल। तो इन ईयर 1904 Thomson defined a model of atom which is known as plum pudding model of atom. This is known as plum pudding model of atom. According to this atom model, the complete atom is neutral. Atom is completely neutral, which has positive charge sphere and electron are fixed in their place. If we talk about the structure में पूरा जो atom है, this red color part is positively charged sphere and these negative charge electrons are fixed in their places. So positive charge and negative charge cancels each other and forms a neutral atom. So according to him, if we conclude on the basic points, then we can say that atom contain two type of charges. One is positive charge, other is negative charge. Combining both charges, we obtain that atom is completely electrically neutral, in which positive charge is equals to negative charge. Negative charged electron are fixed in the positive charge sphere. The electrons are embedded, electrons are fixed in this, you can say, positive charge sphere. This is known as pudding model of atom. According to him, we can compare the atoms with Christmas pudding. इस pudding में these are electrons and this is positive charge. ये केक जो है, केक यहाँ positive charge है, positive charge electrons embedded है. Then he compared the similar model with watermelon. In watermelon, this ring, this red part is positive charge, and the seed embedded in the watermelon, these are electrons which are present in this watermelon. Similarly, if we compare this with the structure of Thomson's atomic model, in this Thomson's atomic model, so this circular path over here, this is positive charge, and these electrons, these are negative charge. So atom is a positive charge sphere. Electrons are set within the sphere. Electrons जो है वो इस sphere के अंदर filled है. So this positive charge and negative charge, this cancels each other and total atom is electrically neutral. Total atom कैसा है? Total atom neutral है. Okay? According to Thomson's atomic model, this is summary of the total structure. According to Thomson's atomic model, atom is positively charged sphere where electrons are set in it. Electrons जो है वो क्या है? Positive charge sphere में embedded है. Then electron is electrically neutral. These are the points which can be concluded from Thomson's atomic model, but there were certain incorrect assumptions. There were certain error in the assumption. Those error was electrons are embedded in positive charge sphere. This point is wrong. Electron is not embedded. Electrons, it was later discovered that electron revolve inside the atom. That will discuss next topic. Electrons is not embedded in positive charge sphere. This is wrong. The next point which was wrong was positive charged atom hold the negative charge electron. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि इन्होंने अज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन फंसे होते हैं पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में, बट ऐसा नहीं होता. और पॉजिटिव चार्ज स्फीयर जो है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रखता. मींस कंडीशन वैसी नहीं होती जैसी वाटरमेलन में सीड्स के साथ होती है. वाटरमेलन के सीड्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड होते हैं, वो निकल नहीं सकते. बट ऐसा कुछ थॉमसन्स के या ऐसा कुछ रियल एटम के साथ नहीं. आफ्टर थॉमसन्स मॉडल, नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय रदरफोर्ड. Rutherford performed an experiment known as scattering of alpha particle experiment. He used alpha particle emitter. This experiment is based on emission of alpha particles, or when these alpha particles strike two atoms, then what will happen? So according to him, he take a radioactive substance which can emit alpha particles. He take a lead box. lead box क्यों लिया? क्योंकि lead रेडिएशन को absorb कर लेता है, जिससे अल्फा पार्टिकल जो है वो यहां से बाहर नहीं आ सकते. यहाँ पे छोटा सा होल है, इसी होल से सारे अल्फा पार्टिकल क्या है? स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं. तो यहां पर एक्सपेरिमेंट जो है इट वाज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स.
इसके बाद क्या हुआ, ये अल्फा पार्टिकल जो है यहां से एमिट होना स्टार्ट होते हैं। सो अल्फा पार्टिकल है क्या, दे आर हीलियम्स न्यूक्लियस, हीलियम 2+। तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पाथ मूव कर रहे थे, हमने यहाँ पे गोल्ड फॉइल लगा दी, ये आपकी येलो गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्रीन लगा दी, स्क्रीन इज मेड ऑफ जिंक सल्फाइड। ये था आपका थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, वेयर देयर वाज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, देयर वाज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है दिस वाज व्हाट रदरफोर्ड एक्सपेक्टेड। उनके अकॉर्डिंग क्या था, एटम जो है वो सीधे स्ट्रेट होने चाहिए, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ पार्टिकल क्या है, स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन में ऐसा भी हुआ, कुछ पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, एक पार्टिकल ऐसा भी है जो 90 डिग्री से ज्यादा, जो पीछे की तरफ स्ट्राइक कर रहा है। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेट जा रहे हैं, एक ये पीछे आया, कुछ आगे चले गए। तो इन्होंने देखा कि ऑब्जर्वेशन में मैक्सिमम पार्टिकल स्ट्रेट जाते हैं, सम पार्टिकल हैव स्मॉल डिफ्लेक्शन, 1 out of 10,000 having deflection greater than 90 degree and 1 out of million rebounded। मैक्सिमम पार्टिकल क्या है, स्ट्रेट गए, कुछ में डिफ्लेक्शन हुआ और उसमें क्या हुआ, एक पार्टिकल वापस आ गया। दिस इज हाउ दे विल लुक एट एटॉमिक लेवल। हुआ क्या, ये पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे थे, स्ट्रेट जाते हुए जो किसी से स्ट्राइक नहीं कि वो थ्रू आउट निकल गए। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर जाते थे, तो उनमें क्या मेजर डिफ्लेक्शन आ रहा था। अब ये पार्टिकल देखिए मैक्सिमम क्या है, स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल में लार्ज डिफ्लेक्शन आ रहा है, कुछ में स्मॉल डिफ्लेक्शन आ रहा है, एंड 1 out of million, इसमें से कोई ना कोई मिलियन में से एक ऐसा पार्टिकल भी होगा जो स्ट्राइक करके वापस चला जाएगा, जो रिबाउंड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट देयर वाज लार्ज डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन एंड सम पार्टिकल रिबाउंडेड। तो एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हैं, some of the particle undergoes small deflection, 1 out of 10,000 undergoes large deflection, and 1 out of million particle जो है 1 out of million particle rebounded from their path। Rebound means the angle or you can say motion changes by around 180 degree। So this is how the experiment went by। experiment का result कुछ ऐसा था, maximum particle जो है अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैक्सिमम पार्टिकल जो है दे वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम नंबर पार्टिकल्स में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन नहीं था। देयर वाज सम पार्टिकल व्हिच अंडरगोज स्मॉल डिफ्लेक्शन। पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे जिनमें डिफ्लेक्शन क्या था, कम था। सम पार्टिकल्स जो थे दे हैव लार्ज डिफ्लेक्शन। यहाँ एंगल का जो चेंज है, अगर ये स्ट्रेट जाता तो ये ऐसे जा रहा होता, लेकिन ड्यू टू सम डिफ्लेक्शन इसका एंगल जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। सम पार्टिकल अंडरगोज लार्ज डिफ्लेक्शन, ये पार्टिकल जो है पहले स्ट्रेट जा रहा था, अगर डिफ्लेक्ट ना होता तो ये पाथ पर जाता। यहाँ पर क्या है, एंगल चेंज जो है वो ज्यादा है। एंड एक पार्टिकल ऐसा भी है यहाँ पर जो टर्न बैक, जो रिबाउंड हो गया, रिबाउंड जो है ये एंगल बहुत ज्यादा है। तो रदरफोर्ड ने इसके लिए एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया। If you have to calculate the number of particles that undergoes a change, then he said that number of particles are proportional to 1 upon sine to the power 4 theta by 2। According to him, number of particles which are deflected by a particular angle theta, they are proportional to 1 upon sine to the power 4 theta by 2। Theta is an angle changed, it is an angle of deflection। For small deflection, number of particles will be large, for higher angle the value will be smaller। So according to this observation he led to some conclusion। इन एक्सपेरिमेंट के बाद हमें कुछ ना कुछ कंक्लूड करना था, तो ऑब्जर्वेशन तो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ विल स्टार्ट विद कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट्स और कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी आर मूविंग ऑन टू कंक्लूजन। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब हम ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या करते हैं, हमने ऑब्जर्व कर लिया एक्सपेरिमेंट में क्या कैसे दिख रहा है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या फायदा हुआ। तो कंक्लूजन्स, फर्स्ट कंक्लूजन इज एटम आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस, thus explaining the lack of deflection of most of alpha particles। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या थे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या है, स्ट्रेट जा रहे हैं। दैट मींस वी कैन से दैट मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। मैक्सिमम स्पेस क्या है, मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम एम्प्टी होगी, तभी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, तभी मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, स्ट्रेट जा रहे हैं। सो फर्स्ट कंक्लूजन इज most of the atom or most of the space inside the atom is empty। Second point,
all the positive charge and almost all the mass of the atom is concentrated in a very small region, that is nucleus. If the maximum part of the atom is empty, that means the total mass of this atom will be concentrated on a very small point. If maximum part of this atom is empty, that means total positive charge. Why positive charge? Because there was some amount of repulsion. वहां पर हमने देखा कि जो भी आपका अल्फा पार्टिकल थे वो रिपेल हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, सो आपका जो भी रिपल्सन होगा किससे होगा? पॉजिटिव चार्ज से होगा. सो ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, एंड द स्मॉल रीजन इज नोन एज न्यूक्लियस. The small region inside the atom is known as nucleus. So Rutherford, you can say, discovered nucleus. रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है. व्हाट इज न्यूक्लियस? अगर न्यूक्लियस डिफाइन करना हो तो न्यूक्लियस इज टाइनी सेंट्रल कोर ऑफ द एटम कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अगर पूछे न्यूक्लियस क्या होता है तो बताएंगे न्यूक्लियस एटम के सेंटर का वो पार्ट है जहां पर पॉजिटिव और मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो वहां प्रेजेंट होते हैं. प्रोटॉन being very heavy compared to electrons, the total mass of atom is composed inside the nucleus of the atom. So nucleus is positively charged और almost all the mass of the atom जो है वो concentrated है किसमें? न्यूक्लियस में. अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? तो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड दे रिवॉल्व अराउंड यू कैन से दे रिवॉल्व अराउंड दैट न्यूक्लियस ऑन अ सर्कुलर पाथ. तो इन्होंने बताया कि अगर हम कंपेयर करें न्यूक्लियस और एटम को, तो न्यूक्लियस और एटम में इतना डिफरेंस होता है कि अगर हम एटम को फुटबॉल का स्टेडियम अज्यूम कर ले, अगर अज्यूम कर ले कि एटम क्या है, एटम इज फुटबॉल स्टेडियम, देन मार्बल, द साइज ऑफ मार्बल, कंचे देखे होंगे आपने, साइज ऑफ मार्बल इज द न्यूक्लियस साइज. अगर एटम फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है तो न्यूक्लियस कितना है? एक मार्बल, एक कंचे जितना बड़ा है. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे स्टेबल हो सकते हैं वहां पर? तो बताया कि जैसे सोलर सिस्टम में सेंटर में सन होता है, जैसे सोलर सिस्टम में सेंटर में सन होता है, रदरफोर्ड ने पूरे एटम को कंपेयर कर दिया सोलर सिस्टम से. सो अकॉर्डिंग टू हिम जैसे सोलर सिस्टम होता है वैसे ही एटम होता है. सेंटर में, जैसे सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है? सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है, वैसे ही एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है. एंड जैसे प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ऑन अ सर्कुलर पाथ. जैसे सन रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, तो सन और प्लेनेट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स. वैसे ही यहां पर न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो इन्होंने एटम को कंपेयर किससे किया? सोलर सिस्टम से. और सोलर सिस्टम में आपके प्लैनेट जो है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी आपके एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ही कंक्लूडेड, उन्होंने क्या कंक्लूड किया? ही कंक्लूडेड दैट एटम इज मैक्सिमम एम्प्टी, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी. Then second point, positive charge in mass of the atom is contained in a central portion, a very small portion, a small volume that is known as nucleus. Nucleus is central core. nucleus ऐसा point है, ऐसा space है जहां पर एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाइड होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द, यू कैन से दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस. और अब साइज की बात करें तो एटम के साइज में और न्यूक्लियस के साइज में जो हम कंपैरिजन करते हैं, एटम का रेडियस 10 टू द पावर 10 मीटर और एंगस्ट्रॉम के टर्म में मेजर किया जाता है. जबकि अगर हम न्यूक्लियस के साइज की बात करें तो न्यूक्लियस का साइज जो है वो 10 टू द पावर -15 मीटर और फर्मी में मेजर किया जाता है. दोनों की अपनी अपनी यूनिट है. दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के रेडियस में डिफरेंस कितना है? एटम इज 10 टू द पावर 5 टाइम रेडियस ऑफ एटम इज 10 टू द पावर 5 टाइम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. So this is all about the conclusion of Rutherford's experiment. अब एक्सपेरिमेंट हो गया तो हम अब आगे डिस्कस करते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या प्रॉब्लम थी. What are the limitations in Rutherford's model of atom? कंक्लूजन के बाद मूविंग ऑन टू लास्ट पॉइंट,
ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सब कुछ सही था, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ बेसिक ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहले ड्रॉबैक था दैट वाज रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड कैन नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जब स्टेबिलिटी की बात आई तो उनके मॉडल में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी? इलेक्ट्रॉन व्हेन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस दे हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते समय वो अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा। अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है देन इट विल हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। If any particle have acceleration, then according to electrodynamic, it is a branch of physics which deals with change in electricity with motion. Accelerated charged particle always release energy in form of electromagnetic wave. According to electrodynamic as defined by Maxwell, it's said that accelerated charged particle, if it is accelerating and it is charged, there are two important points. If it is accelerating, it has charge, that it will radiate energy, it will lose energy in form of electromagnetic wave. If particle loses electromagnetic wave, you can say it loses energy in form of electromagnetic wave. तो वेव के फॉर्म में एनर्जी लूज करता जाएगा तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा, डिक्रीज करने की वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। वेलोसिटी कम होगी तो इसका रेडियस डिक्रीज करता जाएगा एंड फाइनली इट विल फॉलो अ पाथ। If it start from here, it will start moving, and due to decrease in velocity, its radius will decrease, and finally, a time will come when it will fall in nucleus. So, atom cannot remain stable. So, when he calculated time in this process is 10 to the power minus 8 second. Within this much time, atom will destroy itself, but ऐसा actually नहीं होता। इनके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, अगर ये सही है तो ड्यू टू इलेक्ट्रोडायनेमिक ये थ्योरी वेरीफाइड थी, हमें ये मानना पड़ेगा ये सही है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे या कभी भी एक्सेलरेट करेगा तो क्या करेगा? एनर्जी लूज करता जाएगा। एनर्जी लूज होगी तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। वेलोसिटी डिक्रीज होने का इसका रेडियस क्या होगा? इस पाथ का रेडियस कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता जाएगा एंड फाइनली इट विल फॉल इन न्यूक्लियस। ऐसा करने में टाइम लगा, दैट वाज 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड। तो एटम जो है, एटम कैन नॉट रिमेन स्टेबल इफ वी कंसीडर दैट रदरफोर्ड मॉडल इज करेक्ट। तो आपका जो रदरफोर्ड मॉडल में पहली प्रॉब्लम का कहां पे आई? पहली प्रॉब्लम आई कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैन नॉट बी डिफाइंड। सेकंड ड्रॉबैक आया, रदरफोर्ड का मॉडल जो था, इट कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। Line spectrum was first observed by Lyman. He observed that when white light is passed through atoms, there are certain color, certain frequency of light that are missing. Rutherford could not explain why this is happening. So these are the drawbacks of Rutherford's atomic model. Okay? I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।